Hello guys, I'm very happy to share that I secured All India rank 56 this year in Civil Service Exam 2020. This was my third attempt. In my last two attempts, they were also good. First attempt I cleared prelims and mains I missed by 14 marks. That was an attempt I gave alongside my graduation. In second attempt I secured All India rank 298 and was given allocated the Indian Civil Account Service, and I was on an extraordinary leave in preparing for the exam. तो मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने दिल्ली में ही आई हैव ग्रोन अप. आई वाज बोर्न इन कोलकाता, ब्रॉट अप इन दिल्ली, एंड आई मतलब इतना फ़नी है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में आई स्टेड फॉर 20 years. माई होम वॉज देयर and still while I was doing my schooling, and I didn't come to know about IAS and what this exam is all about and why people are there in Old Rajnagar. And when I came to IIT by third year, I realized कि IAS भी एक career है which I can pursue after my technical graduation, and उस पर फिर मुझे interest आने लगा. And fourth fifth year से मैंने थोड़ा determined, थोड़ा serious study करके, and eventually I gave my 2018, 19 and 20 attempts. Welcome to Luqman IAS. The Public Administration Foundation live online classes are as effective as offline classes. Study Public Administration optional under the guidance of S. Ansari, the one who has taken this optional to a new height. Since 2011, Luqman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this optional. Go through the course features of Public Administration Foundation for 2021. Live classes are similar to offline classes in terms of the concept building, the interaction and addressing of students' queries, and the dictation of notes. There will be elaborate discussions on concepts, theories and principles, linking them with contemporary and current developments. In the live classes, notes are properly dictated the way it is done in offline classes. In fact, it is one USP of S. Ansari sir's classes. Optional is like a religion. You have to study it with a discipline and dedication under a guru. Most students get good ranks due to ethics, essay and optional, for which one does not have a better choice than Luqman IAS. So, contact us today for more information. I have graduated from IIT Delhi in Biochemical Engineering and Biotechnology. It was a BTech and MTech dual degree course 2013 से 2018 के बीच में, and prelims मेरा तीनों साल निकल गया था. 2018 में भी graduation के साथ ही, in fact graduation के बीच में I graduated August 1 तक हमारा masters का thesis देना होता है, and जून में प्रीलिम्स था तो आई गिव दैट, एंड सितंबर में मेंस होता है, तो वो वाला भी प्रीलिम्स निकल गया था, एंड कंसिस्टेंटली मेरा स्कोर इम्प्रूव किया. इनफैक्ट 2019 का जो मेरा मेंस 2020 का जो मेरा प्रीलिम्स था उसमें अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन अराउंड 130s या 140s में आ रहे थे एक पेपर से. तो दिस वाज अ गुड, वेरी गुड स्कोर फॉर मी, अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस कि जब हम प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं prelims का 130-140 seems like a lot. So I can share my prelim strategy with you in this video. तो prelims में मेरा strategy multiple prongs पे ये था, multiple points पे, कि पहला एक newspaper current affairs रहता है और एक static रहता है. तो static everybody knows the books and all the references, तो I'll not go about it. मेरा भी एकदम सेम था, इसलिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ ली, एंड जोग्राफी के लिए वही नोट्स पढ़ लिए, जो भी PMFIS का कंपाइलेशंस पढ़ लिया, रिवर्स, माउंटेन, इन सब के ऊपर अलग अलग, एंड NCERT से पढ़ते हैं सब. तो ये सब मेरा जेनेरिक सोर्स है. सो आई विल नॉट गो ऑन द स्टैटिक बुक्स के ऊपर इतना. मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी भी वर्क कर लूँ, बता दूँगा. एंड न्यूज़पेपर की साइड से, जो करंट अफेयर्स की साइड से होता है, वो मेरी स्ट्रैटेजी मतलब ये था कि आई वॉज ऑलवेज इंक्विजिटिव. जैसे पेपर पढ़ रहे होते थे तो आई वॉज श्योर कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, नॉट जस्ट आउट ऑफ द ब्लू इंक्विजिटिव, आई न्यू कि दैट विल पे मी डिविडेंड्स इन द एग्जाम ऑल्सो. तो जब भी कुछ न्यूज़ में कुछ आ रहा है, कोई स्पेस मिशन आ रहा है या कोई भी गंगा मिशन के ऊपर कुछ आ गया या कुछ भी आ गया, कुछ अच्छा यूनिक सा नया
कुछ आ गया, तो आई यूज टू गूगल इट, 2-3 और टैब्स खोल के, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर कंटेंट नहीं रहता था, मैं 2-3 टैब्स और खोल के कुछ पढ़ लेता था। सपोज यूपीआई पे कुछ आ गया, पढ़ लिया, एंड वो यूपीएससी इज़ काइंड ऑफ रिवॉर्डिंग दैट क्यूरोसिटी आई गेस थ्रू द एग्जाम्स ओवर द ईयर्स। आई हैव सीन 2018 से पेपर का जो आप एक ट्रेंड देखोगे यार, एक वो जो देखोगे वो एनालिटिकल और थोड़े क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कहीं कोई स्टैंडर्ड स्टॉक सोर्स से एक क्वेश्चन भी रिपीट नहीं हो रहा है, ना किसी के मंथली मैगजीन से रिपीट हो रहा है, ना कहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेश्चन हिट कर जाते होंगे, 5-10 क्वेश्चन, बट मेजर आपका ब्लैंक हो जाओगे अगर आप सिर्फ मंथलीज को ब्लाइंडली प्रिपेयर करके जाओगे या स्टॉक कोई भी कोचिंग का प्रिपेयर करके जाओगे। सो यू नीड टू बी मोर इंक्विजिटिव, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। यूपीआई चल रहा है या ई रूपी नया लेके आया है, तो इस बार भी जैसे मैं अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आई वॉज वेरी श्योर कि ई रूपी चल रहा है, तो मैं खुद से 2-3 लिंक या FAQs जो होते हैं उनकी साइट पे जाके पढ़ लिए, या कोई स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कुछ नया मिशन कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, जल जीवन मिशन चल रहा है, या कोई बिल आया है, सपोज कमीशन ऑन एयर क्वालिटी आया है दिल्ली में, तो उसके ऊपर जाके 2-3 टैब्स 4 टैब्स, जब तक नहीं, मतलब आप 5 मिनट भी अगर उस पर आप लगाओगे, सो यूपीएससी का जब क्वेश्चन आएगा एलिमिनेट करने में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आपका गट रहेगा उसको एलिमिनेट करने में, एंड आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आप अपना टाइम बचा के वो क्वेश्चन कर सकते हो, एंड दैट रियली हेल्प मी 2018, 19, 20 तीनों अटेम्प्ट्स में। और मैंने डिफरेंट तो क्या किया कि कवरेज थोड़ा वाइड ही रखा, मतलब जो मैं मंथलीज भी कर रहा था तो मैं मंथलीज करता था, मैं अपना जो स्टैंडर्ड विजन की है वो भी करता था, शून्य IAS की भी करता था, और थोड़ा वाइड रहता था कवरेज। क्वेश्चंस ही हार्डली रिपीट होते थे, बट मेरे को ऐसा हाइंडसाइट में लगता है गट फीलिंग मेरी इंप्रूव कर जाती है जब मैं वाइड कवरेज बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ता हूँ, रादर दैन प्रीलिम्स में डीप जाता हूँ, किसी बहुत ज़्यादा डीप जाता हूँ और कम कवर करता हूँ। एंड आइडियल सिचुएशन तो है आप डीप भी जाओ और वाइड भी जाओ, विच इज़ नॉट फीजिबल। बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत कुछ करना है, तो आप वाइड कवरेज पे ज़्यादा फोकस करो और डीप अपनी क्यूरोसिटी के बेसिस पे, पेपर के ट्रेंड के बेसिस पे, PYQs के बेसिस पे आप थोड़ा जज कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है, देन उस हिसाब से आप उतनी डेप्थ में, जितना शैलो जितना डीप पढ़ना है आपको, वो आप थोड़ा नेविगेट कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो तो आप कोर्स करेक्ट भी कर सकते हो धीरे धीरे, कि अपने नोट सही बना रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजी सही है। तो ये प्रीलिम्स में कंटेंट वाइज ये सब था। बाकी एक आपका रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप जितना भी कुछ भी पढ़ रहे हो, आप मंथली पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आप छोटे नोट्स उसके बनाते रहो। आपने एक वर्जन छोटा बना लिया या 2 वर्जन छोटे बना लिए, 2 वर्जन इन द सेंस कि लास्ट 1 हफ्ते में अगर आपको सब रिवाइज करना है तो सब तो रिवाइज कर नहीं पाओगे, तो जो आप भूल जाते हो या बहुत ही स्टैटिक या बहुत ही जैसे हाई पावर्ड मनी, MO, M1, M3, M4, ये मैं हमेशा भूल जाता था, बहुत ही मुझे कंफ्यूजिंग हमेशा लगता था फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में, तो मैं वो लिख लेता था कहीं कि ये ना भूलूँ, जहाँ पे मेरी प्रोक्लिविटी टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा है भूलने की। तो ऐसी चीज़ें लास्ट में 5-7 दिन के लिए रख ली और एक वर्जन बना लिया कि इन जनरल आप उसको 3-4 बार या 2-3-4 बार जितनी बार आपको रिवाइज करना है वो आप रिवाइज कर पाओ। तो ये एक रिविजन के लिए आप नोट्स छोटे बनाओ, वो मेरा आपको सजेशन रहेगा। बाकी पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के टाइम पे आप जितने टेस्ट सीरीज दोगे, जितने तो नहीं, मतलब डोंट गो आउट ऑफ द वे, मतलब 2 टेस्ट सीरीज मैक्सिमम आई गेस, 2 टेस्ट सीरीज अराउंड दैट, 2 + 1 - 1 जो भी है। बट टेस्ट सीरीज देने से क्या होगा, आपका एक आप जो पढ़ रहे हो आपको वो भी पता होगा कि आप सही जगह डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। दूसरा आपकी एलिमिनेशन, आपका गट फीलिंग क्या है, आप जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, करेक्ट इनकरेक्ट है वो क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन रीडिंग सही कर रहे हो, या आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का तरीका जो होता है कि आप रिवाइज कर रहे हो और मल्टीपल रिवाइज कर रहे हो या बबल पहले मार्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो सब चीज़ें आपकी पेपर सॉल्विंग से बहुत होन हो जाती है। एंड फाइनली इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मार्क्स हेयर एंड देयर, कट ऑफ इज़ वेरी रिजिड और उसके आधा नंबर भी नीचे हो गया, आप बाहर हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर कर जाती है, स्पेशली आपका फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में, जब आपका इतना शॉर्ट नहीं रहता कि आप कट ऑफ से बहुत ऊपर होगे, कंटेंट के जस्ट ऊपर रिलाई करो। तो ये सब चीज़ें टेस्ट सीरीज से आप होन करते रहो। एंड मेरा यूजुअली ऐसा होता था कि मैं रिवाइज करता था 2 या 3 बार जब मैं टेस्ट लिख रहा होता था। तो मैं एक बार देता था, एक गो थ्रू कर लिया मैंने टेस्ट को, फिर उसके बाद अराउंड 1 घंटा 10 मिनट, या डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना इजी आ रहा है, पेपर कैसा है, मतलब 50 मिनट से लेकर 1 घंटा 10 मिनट
15 मिनट तक आप फर्स्ट राउंड में लगा लेता था। मैं जितने भी क्वेश्चंस मुझे एक ऑप्शन एलिमिनेट करने पे या डायरेक्टली मुझे पता चल रहा होता था या 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने पे मैं वो जल्दी जल्दी कर लेता था। फिर उसके बाद सेकंड आइट्रेशन में आता था वो क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट आइट्रेशन में गोला मार दिया उसको या टिक कर दिया कि मेरे को नहीं आता ये क्वेश्चन, आई केम बैक टू दैट क्वेश्चन एंड एलिमिनेशन और लगाया या और कुछ नया कुछ मुझे अगर याद आ रहा है या कुछ बेटर फीलिंग आ रही है तो उसको मार्क कर लिया। और फर्स्ट अपना रिवीजन के बाद जो मेरी इजी क्वेश्चन है उसके बाद ही मैं बबल भर लेता था। मुझे रियलाइज़ हुआ विद टाइम कि उस टाइम बबल भरने से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सही रहता है कि सबसे जो आप कंफर्टेबल क्वेश्चंस हैं वो आपने फिल कर लिए हैं, दैट इज़ योर आपका एक कोर बन जाता है कि आपने मार्क कर दिया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आप जब एलिमिनेट करते हो तो वो बेटर रहता है, आपको पता होता है कि कितने क्वेश्चन आपने छोड़े हैं या नहीं पता और कितने क्वेश्चन आपको और अटैम्प्ट करने पड़ेंगे बाय एलिमिनेशन। बिकॉज आप ऐसा नहीं है कि बहुत कम अटैम्प्ट कर दोगे और आपका ईजिली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू अटैम्प्ट अ लॉट, तो आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि आपने फर्स्ट आइट्रेशन में कितना मार्क किया, सेकंड में कितना। और थर्ड आइट्रेशन में ऐसा होता है कि सपोज मैंने 7-8 क्वेश्चन हैं जो सेकंड आइट्रेशन में भी नहीं मार्क करे हैं, सपोज 90 to 93 क्वेश्चन ही करें या 90 क्वेश्चन करें, तो मैं ट्राई करता था उसमें भी कुछ स्क्वीज आउट करके मैं 3-4 क्वेश्चन निकाल लूँ या 5-6 निकाल लूँ, जो भी है, कि लास्ट में मुझे 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा ना छोड़ना पड़े। मैं ऐसा ट्राई करता था और ये आपका थर्ड रिवीजन बोल सकते हो, आपको थर्ड आइट्रेशन बोल सकते हो, जो छोटा रहता था बट क्रूशल हो जाता है वो 3-4 क्वेश्चंस भी आपका कन्वर्ट करना आपको सही में। तो ये मेरा पेपर सॉल्विंग का स्ट्रैटेजी था, कंटेंट पे था। और ये थोड़ा जो मैंने अपना वाइड कवरेज रखा एंड न्यूज़पेपर रीडिंग पे मैंने थोड़ा आपको डिफरेंट वाला बताया। बाकी प्रीलिम्स में मैंने काफ़ी लोगों का देखा है अपने फ्रेंड्स में भी हु आर रियली गुड अपना अटेम्प्ट जो मॉक्स वॉक्स करते हैं, फाइनली ऑन द डे थोड़ा लेट डाउन हो जाता है उनकी परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर रीजन। तो उसमें नॉट जस्ट प्रीलिम्स, मेरा इंटायरली ये रहता था कि मैं पूरी प्रेपरेशन फेज़ में इतना अपने आप को नहीं इन्वॉल्व करता था कि मतलब यू आर नॉट इंजॉइंग और लिविंग लाइफ। तो वो क्या होता है, उससे आप नर्वसनेस बिल्ड होती है, आपका एंजाइटी लेवल्स बिल्ड होते हैं और फाइनली फिर एग्जाम डे पे वो प्रेशर में आपका वो हर चीज़ इफ़ इट हैज़ टू गो रॉन्ग इट गोज़ रॉन्ग ऑन दैट डे। तो डोंट ट्रबल योर सेल्फ इतना ज़्यादा कि यू आर नॉट एबल टू गिव फाइनली एग्जाम एक फ्रेश माइंड से, एक रिलैक्स माइंड से। थोड़ा एंजाइटी बनता है, सबका होता है, बट वो एंजाइटी एकदम कंट्रोल लेवल पे, जितना आपका कंट्रोल कर पाओगे आप जितने माइंड को, उतना आप अपनी प्रेपरेशन को एग्ज़ाम फाइनल डे डी डे पे कन्वर्ट कर पाओगे। सो उसके लिए मैं आई रेगुलरली वेंट टू द जिम। 3 साल में रेगुलरली गया। एग्ज़ाम से पहले थोड़ा बहुत छोड़ देता था या उसको लाइट कर देता था एक्सरसाइज को, बट आई मेंटेन थोड़ा फिजिकल एस्पेक्ट जिससे मैं एग्जर्शन फिजिकली करूँ तो इमोशनली इतना बर्डन ना फील हो मुझे, और थोड़ा बाहर निकलना भी हो जाता है, थोड़ा म्यूज़िक चल जाता है 1 घंटा एंड ब्रेक हो जाता है एग्ज़ाम में, एक दिन में भी ब्रेक हो जाता है एंड सही रहता है वो। और इन जनरल मैं बुक्स एक्स्ट्रा पढ़ता था, नॉन फिक्शन, तो उससे एक प्रोग्रेस फील होता है कि आप पढ़ रहे हो, प्रेपरेशन कर रहे हो 2-3 साल, तो सेम लूप में घुसने की जगह आपको रियलाइज़ होता है। इनफैक्ट मैं अभी 1-2 हफ्ते पहले ही आई वॉज फिगरिंग आउट, क्या 3 साल हो गए, तो व्हाट हैव आई अचीव्ड इन दोस लास्ट 3 years। तो उससे मुझे अच्छा लगा कि चलो फिटनेस पे मैंने आई वर्कड ऑन दिस फ्रंट एंड मैंने बुक्स एक्स्ट्रा में मैंने 50-60 कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ ली। तो वो जो फील गुड फैक्टर रहता है वो ऐड करता है आपके फाइनल डे के दिन परफॉर्मेंस पे। एंड ये प्रीलिम्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फील गुड रहो, आप लोगों से बात करने करो, लास्ट में ऐसे एकदम कट ऑफ मत कर देना कि प्रीलिम्स के बाद ही एकदम बात करूँगा लोगों से। एंजाइटी एकदम मत बढ़ा लो, ऐसा कोई काम मत करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा लेट ऑफ कर सकते हो आराम से। प्रीलिम्स आजकल इतना भी इंटेंसिव प्रेपरेशन पे नहीं है, रादर दैन आपकी ओवरऑल एनालिटिकल जो आपने क्यूरोसिटी मेंटेन करी है साल भर 2 साल भर, वो ज़्यादा जज होती है। तो उस सेंस में आप फाइनल डी डे भी एस करना। आपका 10 अक्टूबर को पेपर है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हुआ होगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड I hope you all clear it with flying colors this time. Thank you.